कैमरा ऑन करके सबको गुड इवनिंग बोल रहे हैं. Okay, so fine. Let me introduce myself. So my name is Iskra Davre, and I am the soft skill trainer of First Bit Solutions. And today we are going to see mm, sessions of soft skills which we cover in First Bit Solution. So आपण काय टॉपिक कव्हर करतो फर्स्ट बिट मध्ये सगळं आज आपण बघणार आहे. सो आई यू ऑल शॉक टू सी कि आज ये कौन सा सेशन होने वाला है, एकदम से सॉफ्ट स्किल कैसे आ गया. सो व्हाट वर द क्वेश्चंस गोइंग ऑन इन योर माइंड? Yeah, good evening everyone. Fine. So just do one thing. ये बताने से पहले I want each one of you to at least write in the chat box good evening, या फिर just together unmute and say good evening. I'll say 1, 2, 3, and when I'll say 3, you all say good evening. Okay? Let's see कौन ready रहते हैं. So good evening all, and from your side I want to say from your side you should say good evening on the count of 3. Okay? 1, 2, 3. Good evening, ma'am. Amazing. So 3 to 4 students, that's fine. चलेगा, आज के दिन इतना थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ. 15 to 16 स्टूडेंट्स में से ओनली 3 to 4 आर सेइंग गुड इवनिंग. अदर्स माइट बी की अनम्यूट करू का, बोलू का, अनम्यूट करून मी गुड इवनिंग म्हणू का, जाऊ दे सगळ्यांनी म्हटले आता सोडून द्या, असं झालं असेल. अदरवाईज अनम्यूट केलं, हा हसून राहिले तेव्हा समजलं. अदरवाईज अनम्यूट केलं असेल पण जाऊ दे परत म्यूट करून टाकू. ओके, फाइन. सो टुडे विल सी की सॉफ्ट स्किल्स मध्ये काय टॉपिक्स कव्हर होतात फर्स्ट बिट सोल्युशन मध्ये. इफ यू हॅव एनी क्वेरी रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स, सो वी कॅन सॉल्व हियर. बट या, टुडे इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. Fine. So are you all ready for it? Everyone? Yes. Give me thumbs up. Don't write in chat box. Write in chat box, but before that, just give me thumbs up, everyone. Send some emoji. Okay, good. So only 4 to 5 students are giving thumbs up. Others, where are you? Are you there or not? Yes, Pradnya? Okay. So Pradnya has raised the hand. Okay, thumbs up. Fine. Okay, and I'm super proud of you, everyone, ki at 8:30, where students feel very low to study, to join the class, today you all joined here. And I'm really proud of you, student. That shows that how much dedicated you are towards your career or towards your growth. So it's a big thing that at 8:30, students are joining for a batch. So really, hats off to everyone. Fine. So I'll just share the screen with you. Just a second. Just give me a minute. I'll just share the screen. Okay, just give me thumbs up if you can all see the screen, or somebody just unmute and say, yes, we are able to see the screen. Okay, great, amazing. Okay. So we'll begin. Okay, thank you for responding, everyone. ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि you all have joined, and I'm feeling super proud of you that you at 8:30 at night you have joined for the session. One question I have to everyone, and the question is ki, how are you all feeling right now? Just give, you can just send the emoji, or you can just write in the chat box one word in Hindi or Marathi or English. फक्त इंग्लिश मध्येच नका बोलू, मराठीत पण बोला, काही हरकत नाही. तर सांगा मग. Just one word. Describe your feelings right now in one word. Or just unmute if anybody wants to unmute. No one? Exciting. Very good, Shraddha. Thank you so much for answering. Good. Neha is saying good. How are you all feeling? The answer of this question. Just one word. मराठीत पण सांगू शकता. मी लिहिते माझ्या साइडनी. I am feeling मस्त. Oh my God. 70% energy remaining in the body. So that is super high, Mayur.
In the evening, where everybody's having dinner and about to sleep, at that time, Mayur is having 70% of energy. Good. Other students? No? No energy? Other students? So Mayur, Neha, and Shraddha. Only three students have written the answer. Other students, just tell me, काय वाटतं तुम्हाला? How are you feeling? And we'll have this session to be a little interactive. And you all know soft skills means interactive session only. ओ इधर से तो क्या अभी आप मुझे देख पा रहे हो, मैं तो आपको देख भी नहीं पा रही हूँ, आवाज भी तुम बोलने के लिए भी रेडी नहीं हो, तो एटलीस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. ओके, मानसी सिंह, गुड. ओके, हु एल्स? नो वन? अदर स्टूडेंट्स? बताना ही नहीं है मैम, आप जल्दी से पढ़ा दो, खत्म कर दो सेशन, हमको देखने दो कि एक्चुअल में क्या सेशन है. ओके, तो अभी मैंने क्वेश्चन तो पूछा है, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो यू द ऑप्शंस एज वेल. So I have two options. So you select one option. Okay. So here you go. 1 minute. Oh, I'm so sorry. Just a second. Let me reshare the screen with you. Okay. So one more time, I'll just share the screen. Give me a minute. Okay. Fine. Okay, so I'll just give you two options and you have to see the two option and you have to answer the question. Still not visible. ठीक है. Okay, just a second. I'll reshare once again. Okay, is it fine now? Everybody is able to see? Okay, only Shraddha is giving the thumbs up. Okay, fine. So you'll be having on the screen the two options, and after that two options, there is going to be a third option as well. So before going towards the third option, I want each one of you to just tell me option one or option two. Okay, fine. Ma'am, screen is not visible. Yes. Okay, just a minute. I'm just sharing the screen. Thank you so much. Now I hope it's visible. Okay, great. Here you go with the two options. One or two. One or two. Yes, anyone? One. One. Okay. So maximum, like two students are saying one. Okay. Mosumi is saying two. Shraddha is saying one. Okay, both the Shraddha. Okay, Mansi is saying one. That's it. Other students, how are you all feeling? Or do you want the third option? मैम पहले थर्ड ऑप्शन बता दो, देन विल टेल. बट इसमें से पहले एक तो सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, वन. गीता इज सेइंग टू. Sai Ram, then Mayur, Pradnya, they are saying one. Neha and Neeta is saying two. Siddhant is two. म्हणजे आता 50-50 झालंय. 50 are one, 50 are two. Okay. Now, I'll show you the third option. ये किसको किसको लग रहा है अभी? Mayur is saying three. Who else? No one?
Okay, fine. So let's move ahead now. I just came to know how you all are feeling. So it's like the high energy and the low hand. The third one is little bit in the middle कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि am I excited or not or या फिर energy low है या down है. Okay. Now I would like to share before starting a soft skill session तुमच्यासोबत सगळ्यांसोबत एक सर्वे शेअर करायचा आहे मला. So ये सर्वे I don't think you must have heard. So I would like to tell everyone that 57% of managers say they look for a candidate who is organized and can manage multiple projects. So wherever you go for an interview, there जो 50% managers है उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज एंड ऑर्गेनाइज कर पाते हैं. एंड दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द सॉफ्ट स्किल्स. Because technically we are very strong, but when it comes to interpersonal skill, when it comes to problem solving, when it comes to organizing, at that time candidates are very low in it. आणि जो 57% मतलब आउट ऑफ 100 57% मैनेजर्स ऐसे लोगों को ही ढूंढ रहे हैं जो प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं और जो वेल ऑर्गेनाइज है, विच आर नथिंग बट द सॉफ्ट स्किल. Then 60% of managers claim the new graduates they see taking jobs within their organization do not have the required soft skill. तो जो आप इंटरव्यूज देने जा रहे हो जाते हो ना, जे कोणी इंटरव्यूज द्यायला जातात एज अ फ्रेशर, तो उसमें से 60% मैनेजर्स ने क्लेम किया है कि उनको ऐसे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं जो जिनमें सॉफ्ट स्किल है. रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल जो कंपनी को चाहिए है वो कैंडिडेट्स में नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे 60% मैनेजर्स ने बोला. कैन यू इमेजिन कि आउट ऑफ 100 अब जितने इंटरव्यूज जाते हैं, गोइंग फॉर 10 इंटरव्यूज, उसमें से 6 इंटरव्यूज वाले एचआर क्या बोल रहे हैं कि रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं मिल पा रहे, और रह गए कितने, 4. Then 81%. Now this is a huge number. 81% companies find it challenging to hire talent with excellent soft skills. So काय होते ना स्टुडंट्स, एक तुम्हाला रियालिटी सांगते मी की यू क्रॅक द एप्टिट्यूड राउंड, यू क्रॅक द टेक्निकल राउंड, यू क्रॅक द कोडिंग राउंड, बट यू आर गेटिंग रिजेक्टेड इन HR राउंड. मॅक्झिमम स्टुडंट्स आर गेटिंग रिजेक्टेड इन HR राउंड. म्हणजे आपल्यासमोर जेवणाची थाळी आली राहते, छान भाजी पोळी राहते, बस एक घास आपण घेतच राहतो. आता बस तो घास पोटात जाणार तर छीन लेता है कोई तो, एंड दैट इज द लास्ट राउंड, दैट इज HR राउंड. और 81 कंपनीज को ये चैलेंज लग रहा है. ओके, श्रद्धा इज वेरी इंटरैक्टिव, थैंक यू श्रद्धा. सो 81 कंपनीज को ऐसा लग रहा है कि ऐसा बोलते हैं कि उनको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, एक्सीलेंट सॉफ्ट स्किल वाले टैलेंट नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज वी आर लाइक not giving that much important to soft skills जितना हम टेक्निकल को दे रहे हैं. Do you agree with me, everyone? How many of you agree? Just raise your hand कि yes ma'am, soft skills को इतना importance नहीं देते हैं जितना टेक्निकल को दे रहे हैं. How many of you agree? Raise your hand, raise your hand. Let me see. Other students, what do you feel? Okay, Pradnya, Shraddha, Mansi, Siddhant. Only 4 students feel so. Other students, are you giving, like, do you feel that students are giving importance to soft skill? What about other students? Okay, Darshan. बाकियों को ऐसा है कि नहीं हैंड रेज करना है, हमको बस सुनना है आज के दिन. ओके, फाइन. ओके, थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड्स ऑल ऑफ यू. एंड अदर स्टूडेंट्स, व्हाट यू फील? अब अच्छा ठीक है, मैंने ये तो पूछ लिया कि किसको किसको लगता है कि सॉफ्ट स्किल्स को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू फील कि सॉफ्ट स्किल्स को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं? बहुत सारे लोग, नॉट यू इंडिविजुअली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर पीपल जो आपके सराउंडिंग है. किसको किसको लगता है कि सॉफ्ट स्किल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? ऐसा किसका किसका है? टेक्निकल नहीं भी आया तो भी चलेगा, बट सॉफ्ट स्किल चाहिए. गुड. If the numbers are higher, then it's fine. Only 2. Okay, fine. तो ये इतना इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल. अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि आप एक तो सॉफ्ट स्किल चूज करो या फिर सॉरी, द थिंग इज कि टेक्निकल चूज करो या सॉफ्ट स्किल चूज करो, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू चूज द टेक्निकल थिंग्स. बट टेक्निकल तो आपको आ जाएगा, यू विल बी नोइंग ऑल द टेक्निकल थिंग्स, बस वो टेक्निकल चीजों को एक्सप्रेस कैसे करना है वो हमको नहीं पता. फिर क्या काम की चीज. एंड जो HR है, जो रिक्रूटर्स है,
वो लोग 70% they see the soft skill and 30% they see the technical skills, because maximum companies are going to train the candidates on technical skills, but soft skills मतलब आपका behavior, your initiative, your problem solving, your communication, इस पे train करने के लिए उनके पास में time नहीं है. तो दे आर सेइंग कि हमको बेसिक टेक्निकल लोग चाहिए है, बट जिनमें एक्सीलेंट सॉफ्ट स्किल है, और वो नहीं मिल पा रहे, और ऐसे 81 कंपनीज बोल रही है, एंड देयरफॉर वी गेट रिजेक्टेड इन एचआर राउंड. नाउ द लास्ट रिसर्च से दैट स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बोलते हैं कि 75 to 85% ऑफ लॉन्ग टर्म जॉब सक्सेस डिपेंड्स ऑन सॉफ्ट स्किल्स. तुम्हाला जर लॉंग टर्म सक्सेस पाहिजे असेल ना कंपनीमध्ये, तर जे कामी येणारे स्किल्स आहे ते म्हणजे सॉफ्ट स्किल्स आहे, आणि 75 to 85%. ऐसा भी नहीं कि 50-50 है. तो टेक्निकल नॉलेज तो है, बट अगर टिक के रहना है, एक ही कंपनी में रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए जॉब चाहिए, कंटिन्यूस जॉब चाहिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में वो सॉफ्ट स्किल्स हो. So 75 to 85% long term job success depends on soft skills. So ye are all the surveys which I would want everybody should know. Therefore आपको ऐसा लगना चाहिए कि soft skill इतना important क्यों है, because HR खुद आके आपको बोलेंगे नहीं कि go and study soft skill and come next time. No, they will directly reject you and they'll not tell the reason, because you are not able to express, you don't have that behavioral etiquette, you don't have that initiative quality, you don't have problem solving skill. ये कैसे बताओगे आप इंटरव्यू में? ये आपको पता चलेगा सॉफ्ट स्किल सेशन में ही. ओके, नेक्स्ट. नाउ ये तो सारे इंटरव्यूज के राउंड है. तो रेज्यूमे बिल्डिंग तो हम सॉफ्ट स्किल में देखने वाले हैं. एप्टीट्यूड तो आपका हो ही जाएगा. एप्टीट्यूड भी यहाँ पे फर्स्ट बिट में वी आर गोइंग टू कवर, प्लस टेक्निकल राउंड. टेक्निकल तो आप जो सब्जेक्ट के लिए एनरोल कर रहे हो वो टेक्निकल में आ जाएगा, बट इन सॉफ्ट स्किल्स वी आर गोइंग टू सी द रेज्यूमे बिल्डिंग एंड द एचआर राउंड के आंसर्स. एचआर राउंड में कैसे बात करना है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करना है, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू सी इन सॉफ्ट स्किल्स. नाउ यू ऑल जस्ट टेल मी माय डियर स्टुडंट्स की जर तुम्ही रेज्यूमे एका इंटरव्ह्यूअरला पाठवत आहे, एका कंपनीला पाठवत आहे, तो वो इंटरव्यूअर कितना टाइम लेता है आपका रेज्यूमे देखकर आपको सिलेक्ट करना या रिजेक्ट करने में? व्हाट डू यू थिंक? वन रेज्यूमे कितना टाइम? 10 seconds. ओके मयूर. 10 seconds. ओके सिद्धांत. 5 to 10 minutes. ओके मानसी. वन रेज्यूमे कितना टाइम लेते होंगे एचआर रिक्रूटर? Mayur said 10, Siddhant said 10 seconds, Mansi 5 to 10 minutes. Other students, just tell me. No right or wrong answers. Don't worry about it. Just speak up. काय वाटते तुम्हाला? तुम्ही जर एक इंटरव्ह्यूअर असते तर तुम्ही एका रेज्युमेला सिलेक्ट करायचं की रिजेक्ट करायचं, हे डिसाइड करायला त्या रेज्युमे पाहून किती वेळ घेतला असता? 5 minutes. ओके प्रज्ञा. Who else? Only these students? Only 5 students? Other students just tell. आणि चुकलं तरी चालेल, तुम्ही तुमचा व्ह्यू सांगा, आवाज सांगा. 1 minute. ओके दर्शन. Who else? Darshan said 1. I want at least 2 answers. 2 answer to be, then I'll go ahead. Yes, anyone? काय वाटते किती टाइम घेत असेल? No one wants to tell? ठीक है, I'll count for 5 seconds. If you want to give the answer, write in the chat box and send it. Okay, the question is Shraddha कि if you are sending a resume to a company, तो जो HR है जो आपका resume देखता है और वो देखकर कितने टाइम में सिलेक्ट करता है कि यू आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड? कितने टाइम में वो डिसाइड कर लेता है कि ये रेज्यूमे सिलेक्टेड है या रिजेक्टेड, जस्ट फ्रॉम अ रेज्यूमे? Just 2 students, give me answer. I'll count for 5 seconds, then we'll go ahead. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, minimum 30 seconds. Fine, Shraddha. Okay, so I would like to tell everyone कि interviewer takes 7 to 14 seconds, around 7 to 14 seconds to scrutinize your resume. कि आप select हो या reject हो. Can you just think कि वो कितना fast देखते हैं और अपना resume कितना attractive होना चाहिए? So that we are going to see in soft skill session.
कि हाउ अ रेज्यूमे शुड बी, कौन से कीवर्ड्स आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू सी इन रेज्यूमे बिल्डिंग. ओके, नेक्स्ट एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल वी आर गोइंग टू कवर. देन एचआर राउंड. सो कैन एनीबडी टेल मी कि एचआर राउंड क्रैक करना होगा तो किस चीज का नॉलेज चाहिए? इफ यू वांट टू क्रैक द एंटायर एचआर राउंड किस चीज का नॉलेज चाहिए? राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन जस्ट रेज योर हैंड. ओके, कम्युनिकेशन एक स्किल है, बट नॉलेज किस चीज का चाहिए? आंसर देते वक्त किसका नॉलेज चाहिए? ये तो स्किल हो गए, बोध श्रद्धा, ये दोनों स्किल्स है. कम्युनिकेशन स्किल्स तो टेक्निकल में भी चाहिए, बट व्हाट इज दैट वन थिंग कि इसका नॉलेज अगर आप में है तो यू कैन क्रैक एचआर राउंड. बिहेवियर इज ऑल्सो स्किल. जैसे टेक्निकल में आप बोल सकते हो कि मीन मन का नॉलेज चाहिए, वैसे एचआर में किसका नॉलेज चाहिए? ओके, मयूर इज सेइंग कॉन्फिडेंस. सो स्टूडेंट्स, यू आर गिविंग मी द आंसर ऑफ स्किल्स. स्किल्स कौन से चाहिए आप ये बता रहे हो. आई एम आस्किंग कि एचआर राउंड क्रैक करना है तो नॉलेज किस चीज का चाहिए? इन डिटेल विजडम किसका चाहिए? आंसर इज वेरी सिंपल. जस्ट थिंक कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं. पहले क्वेश्चन में ही आपका आंसर है. एचआर का टेक्निकल राउंड का पहला क्वेश्चन क्या रहता है, उसमें ही आंसर. थिंक, थोड़ा लॉजिक लावा, थोड़ा सा. हाँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. नॉलेज किस चीज का चाहिए फिर अगर एचआर राउंड क्रैक करना है तो? एचआर इज ऑल बिहेवियरल एस्पेक्ट. व्हाट डू यू थिंक, किसका नॉलेज चाहिए? अनम्यूट एंड टेल एनीबडी. वेरी गुड श्रद्धा. Self knowledge. If you know about yourself, if you know which problem you have solved, if you know what are your achievement, if you know who is your role model, if you know how you behave with the people, if you know what your friends think about you, if you know about your certifications, if you know about your technical skills, if you know about your people skills, ये सारी चीजें अगर आपको पता है, you are definitely going to crack the HR round. बट आपको यस, एज द स्टूडेंट सेड, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन ये तो चाहिए है. ये कैसे बिल्डअप करना है ये भी हम सॉफ्ट स्किल में देखने वाले, सो यू डोंट वरी अबाउट इट. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्किल भी वी आर गोइंग टू सी, सो यू डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट. बट एचआर अगर क्रैक करना है ना, तो सबसे पहली चीज यू शुड नो इज अबाउट योरसेल्फ, कि आप खुद को कितना जानते हो. इफ यू वांट टू क्रैक द एचआर राउंड, यू हैव टू नो योरसेल्फ. ओके, गुड. आगे बढ़ते, सो लेट्स सी द टॉपिक वन बाय वन. सो हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इन अ सॉफ्ट स्किल सेशन? तो पब्लिक स्पीकिंग. सो व्हाट डू यू ऑल थिंक स्टूडेंट्स, पब्लिक स्पीकिंग मतलब क्या है? व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू यू? क्या वाटते? यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड शेयर विथ मी और राइट इन द चैट बॉक्स, और जस्ट रेज योर हैंड आणि सांगा. एनीबडी गो फॉर इट. पब्लिक स्पीकिंग म्हणजे काय? एनीवन? नो वन? व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? Group speaking like GD. Okay, Shraddha and Mayur. Good. Nearby. आता खूपदा काय होते ना, की खूप जण काय म्हणतात की पब्लिक स्पीकिंग म्हणजे 100 लोक समोर बसले आहे आणि आपण स्टेजवर उभं राहून बोलत आहे. दॅट इज वन पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. But public speaking is also when you're sitting in a meeting. Public speaking is also when you're in a conference. And there you are speaking in front of people. 2 or 3 people, more than 2 or 3 people. हाँ. सो ये मतलब पब्लिक स्पीकिंग. बहुत से लोगों को क्या लगता है पब्लिक स्पीकिंग मतलब आगे सबके सामने, 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने बात करना. ये तो पार्ट है उसका. बट पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो वेन यू आर विद द ग्रुप ऑफ पीपल, और उनके साथ में आप कैसे बात करते हो, उनके साथ में आप खुद के पॉइंट्स कैसे रखते हो, हाउ यू स्टार्ट योर पॉइंट, हाउ यू इंटरप्ट, व्हाट फ्रेजेस डू यू यूज वाइल स्पीकिंग. किसी का पॉइंट अगर पसंद नहीं आता है तो हाउ यू आर डिसएग्रीइंग. ये सारी चीजें जो आती है, दीज आर ऑल स्किल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं. देन नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग. सो एक्टिव लिसनिंग मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. बट क्यों ये कम्युनिकेशन का पार्ट है एक्टिव लिसनिंग, ये आपको सेशन में पता चलेगा. यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि मैम लिसनिंग तो लिसनिंग है, सुनना और बात करना ये रिलेटेड कैसे है. तो ये आपको सॉफ्ट स्किल के सेशन में ही पता चलेगा कि व्हाई लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंटर रिलेटेड.
one of the most important part of communication skills are listening. तो ये क्यों है ऐसा, ये हम देखेंगे in our soft skill session जो first bit में you are going to learn about it. Okay, and yes, as I said, resume writing, we are all going to cover resume writing, कैसे क्या करना है, everything. Okay, next is email etiquette. Now students, just tell me one thing. If you want to send a mail to anyone, like you want to send a mail to HR कि मुझे apply करना है आपकी कंपनी में, तो वो जो मेल है आप वो कहाँ से लिखोगे कि कौन सा कंटेंट आना चाहिए वो मेल में, फ्रॉम वेयर विल यू राइट? जस्ट गिव मी सिंपल आंसर एंड डोंट चीट. आजकल का आपला बेस्ट फ्रेंड कौन बनला है आजकल? हु इज आवर बेस्ट फ्रेंड? वेयर? वेरी गुड. सो दर्शन इज सेइंग चैट जीपीटी. या सब्जेक्ट से तो स्टार्ट करेंगे श्रद्धा, दैट्स राइट. बट अगर हमको ढूंढना है प्रॉम्प्ट क्या देंगे हम चैट जीपीटी को? कॉपी फ्रॉम गूगल चैट जीपीटी. अभी गूगल से अच्छा तो चैट जीपीटी इतना यूजर फ्रेंडली हो गया कि हम डायरेक्ट अच्छा प्रॉम्प्ट देना चाहिए बस कि चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दो कि राइट अ मेल टू एन एचआर वेयर वी वांट टू अप्लाई इन द कंपनी फॉर दिस पोजीशन, और आपके पास में डायरेक्ट सब्जेक्ट से लेके पूरा मैसेज बॉडी आ जाता है. देन व्हाई आर वी स्टडिंग द ईमेल एटिकेट? ये तो सब चैट जीपीटी पे है, फिर क्यों हम ईमेल एटिकेट पढ़ेंगे? सो द थिंग इज, ईमेल एटिकेट में क्या होता है कि यू शुड नो द एलिमेंट्स ऑफ ईमेल. जो एप्लीकेशन रहता है तो उसके एलिमेंट्स क्या है? मैसेज बॉडी पार्ट 1, मैसेज बॉडी पार्ट 2, देन साइन आता है, देन सैल्यूटेशन आता है, सब्जेक्ट आता है, सीसी आता है, बीसीसी आता है, और बाकी एटिकेट रहते हैं कि मेल में क्या होना चाहिए, मेल कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मेल कैसे एंड करना चाहिए. ये आपको पता होना जरूरी है. रेडीमेड तो हमको मिल जाता है, बट इन केस व्हेन देयर इज नो चैट जीपीटी, जस्ट थिंक इन दैट वे. कंटेंट तो ठीक है आपको मिल जाएगा गूगल से, बट टू राइट कि कौन सी चीज किसको बोली जाती है, मैसेज बॉडी पार्ट 1 क्या है, सीसी क्या है, सैल्यूटेशन क्या है, बीसीसी में किसको होना चाहिए, 2 में किसको होना चाहिए, कौन से फ्रेजेस वी कैन यूज टू स्टार्ट द मेल, ये सारी चीजें पता होना इज अ एलिमेंट. सो ईमेल एटिकेट भी रहते हैं कि कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए. सो बहुत सारे ईमेल एटिकेट है विच वी नीड टू फॉलो, तो वो हम पढ़ेंगे. तो ईमेल एटिकेट का भी सेशन वी आर गोइंग टू लर्न, सो दैट कंटेंट तो अभी मिल जाता है चैट जीपीटी से, बट एलिमेंट्स हमको पता नहीं है ईमेल के. तो दैट आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन सॉफ्ट स्किल सेशन. उसके बाद में प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ यू विल प्रेजेंट, वेयर यू विल स्टैंड ऑन द स्टेज, आगे कब जाना है, पीछे कब जाना है, साइड में कब जाना है, राइट साइड कब जाना है, हाउ विल यू मेक द आई कॉन्टैक्ट, हाउ विल यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन स्किल्स में आता है. How will you begin? How will you end? How will you attract the audience when you are presenting? How a body language should be when you are presenting? Where should we look when? Where should we stand when? What to share when? ये सारी चीजें comes under presentation skill. तो ये भी हम सॉफ्ट स्किल में पढ़ने वाले हैं. एंड इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज फॉर कॉर्पोरेट्स, बॉडी लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू, बॉडी लैंग्वेज फॉर प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन स्किल. 4 टाइप्स के ऐसे अलग अलग बॉडी लैंग्वेजेस होते हैं. कॉर्पोरेट में जब प्लेस हो जाओगे तब अलग बॉडी लैंग्वेज रहता है, इंटरव्यू को जाओगे तो अलग बॉडी लैंग्वेज रहेगा. देन कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेट अगर किसी के साथ कर रहे हो तब अलग बॉडी लैंग्वेज रहता है. सो ये सारी चीजें हमको पढ़ना बॉडी लैंग्वेज में है. And there are number of different things when you are presenting, when you are on the stage, तब body language कैसी होनी चाहिए. So ये सारी चीजें we are going to learn in body language. So there is going to be number of sessions. उसके बाद में अब ये सारी चीजें तो आ ही गई है, but along with that how to build the confidence. ये सॉफ्ट स्किल सेशन खत्म होने के बाद में ना आई गारंटी कि आप लोग सब ऐसे रहोगे कि आप चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखोगे, यू विल डायरेक्टली जस्ट रेज योर हैंड, यू आर गोइंग टू डायरेक्टली अनम्यूट एंड स्पीक. इतना गारंटी आई कैन गिव एट द एंड ऑफ द सॉफ्ट स्किल सेशन. इतना आप इम्प्रूव कर पाओगे. आता काय होते अनम्यूट करायला जातो तो हार्ट बीट्स बढ़ते हैं. अब हम लोग आंसर देना है, अनम्यूट करने जाते हो तो नहीं सबके सामने नहीं देना है. वीडियो ऑन करने बोला तो नहीं आई एम नॉट द कैमरा पर्सन, आई विल नॉट स्विच ऑन द कैमरा, मुझे डर लगता है सब लोग मुझे देखेंगे. तो भी you are all right now are safe, you are sitting safe, you are not ready to unmute, you are not ready to switch on the camera. It is because you are low in confidence.
तो हाउ टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस वो भी हम अपने सॉफ्ट स्किल सेशन में देखने वाले हैं. ओके, एंड देन कम्स द टाइम मैनेजमेंट. सो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट? Raise your hand. Raise your hand. How many of you feel time management is important? Everyone. 4 students, 5 students. Mansi, Mayur, Darshan, Neha, Shraddha, Vaishnavi, Mayur. Okay. 6 students. बाकी स्टूडेंट्स तो ऐसे है कि जाने दो ना, ये लोग तो हैंड रेज कर रहे तो हम क्यों हैंड रेज करें? दे डोंट डू लाइक दिस. बी अच्छा, प्रतीक्षा फाइन, कृष्णा ओके. हैव कम्युनिकेशन, इसलिए तो मैं कैमरा ऑन करती हूँ. सॉफ्ट स्किल सेशन में अगर सॉफ्ट स्किल ट्रेनर ही नॉट स्विचिंग ऑन द कैमरा, हाउ अ स्टूडेंट आर गोइंग टू स्विच ऑन द कैमरा? हाउ अ स्टूडेंट इज गोइंग टू स्पीक if the soft skill trainer is not able to like switch on the camera? Okay, fine. Lower down your hands. The how to build the confidence, ये भी चीजें हम देखने वाले हैं. This also session we are going to have. Then we are going to have the base of soft skill. सॉफ्ट स्किल्स का बेस क्या रहता है? सारे सॉफ्ट स्किल वो बेस के ऊपर कवर होते जाते हैं, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स आर नथिंग बट द पीपल स्किल्स. यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि क्या है सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स सुन के समझ में नहीं आ रहा है. सो इट इज नथिंग बट द पीपल स्किल. जहाँ पे लोग इन्वॉल्व है ना, where you want to talk with your manager, people involved, where you want to communicate, people involved, where you want to present, people involved, where you want to speak, people involved, where you need to solve a problem, people are involved, where you need to work in a team, people are involved. तो सॉफ्ट स्किल्स का दूसरा डेफिनेशन, दूसरा वर्ड इज पीपल स्किल्स. हाउ यू बिहेव विद पीपल, हाउ यू टॉक विद पीपल, हाउ यू सिट व्हेन यू आर विद द पीपल. तो ये मतलब है सॉफ्ट स्किल. और खुद के रिलेटेड, हाउ यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड व्हेन यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स. सो ये कैसे आप मैनेज कर पाते हो, दीज आर ऑल्सो सॉफ्ट स्किल्स. सो जहां पे पीपल रिलेटेड चीजें आती है, यू नीड टू मैनेज टाइम, तो वो सारी है सॉफ्ट स्किल्स. देन कॉर्पोरेट एटिकेट. कॉर्पोरेट में जाने के बाद में कौन से एटिकेट फॉलो होना चाहिए, क्या फॉलो होना चाहिए, हाउ यू शुड बिहेव व्हेन यू गेट प्लेस्ड इन अ कंपनी. तो ये भी मैटर करता है, बिकॉज कॉर्पोरेट एटिकेट अगर कोई फॉलो नहीं करता है, देयर आर सर्टेन पॉलिसीज जिसके वजह से कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द एटिकेट. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज द मॉक्स. बी प्रिपेयर्ड फॉर द मॉक. तो टेक्निकल के मॉक्स होंगे, सॉफ्ट स्किल के एचआर के नंबर ऑफ मॉक्स यू आर गोइंग टू गिव. आप मॉक के लिए ऐसे रेडी हो जाओगे कि नींद में से उठा के भी अगर आपको बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, नींद में ही आंसर करेक्ट देके यू जस्ट गो टू स्लीप. ऐसा आंसर एवरीबडी शुड नो. टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू हैव सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम. हु इज योर रोल मॉडल? डू यू हैव लीडरशिप स्किल? एक्सप्लेन अ सिचुएशन वेयर यू हैव शोन लीडरशिप स्किल. एक्सप्लेन अ सिचुएशन वेयर यू हैव एनकाउंटर्ड अ फेलियर. तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इज अबाउट यू. और ये नींद में भी आपको देते आने चाहिए. इतने वी आर गोइंग टू लर्न द आंसर इन दैट वे. तो मॉक से तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है. जितने मॉक्स दे सकते हो ना, उतने मॉक दो. एंड मॉक्स आर नथिंग बट अ प्रैक्टिस इंटरव्यू. तो ये चीजें भी सब लोग ध्यान में रखो कि मॉक्स मतलब अ प्रैक्टिस इंटरव्यू. सो दैट रियल इंटरव्यू में आप गलतियां ना करो. मॉक में जितनी गलतियां करनी है कर लो, बट डोंट मेक ए मिस्टेक व्हेन यू आर गिविंग द रियल इंटरव्यू. ओके, नेक्स्ट. Now, what is this? Our expectations from you. तो first bit trainers को students से क्या क्या expectation है? What is the meaning of willingness, my dear student? तो ही आमची तुमच्याकडनं अपेक्षा आहे की तुम्ही हे 4 गोष्टी करायला पाहिजे. आम्ही तर तुमच्या अपेक्षा सगळ्या पूर्ण करू, प्लेसमेंट देऊ, तुम्हाला ट्रेनिंग देऊ. But we also expect something from students which we cannot do for you. हम लोग आपके लिए नहीं कर पाएंगे. So what is willingness? Can anybody tell the definition? Willingness म्हणजे काय? Yeah, anyone? विलिंगनेस म्हणजे काय? मराठीत सांगा, अनम्यूट करून सांगा. मराठीत एखादं सेंटेन्स सांगा. एनीवन जस्ट अनम्यूट अँड टेल की ठीक आहे, कोणी पण सांगा. विलिंगनेस म्हणजे काय, कन्सिस्टन्सी म्हणजे काय आणि कमिटमेंट म्हणजे काय. कुठलाही एक वर्ड सिलेक्ट करा आणि त्याचं मीनिंग सांगा. व्हॉट इज युअर डेफिनेशन ऑफ विलिंगनेस, कन्सिस्टन्सी अँड कमिटमेंट? नो वन? यस प्रतीक्षा, योर हैंड इज रेज. वुड यू लाइक टू गिव द आंसर? अच्छा, पहले से था. फटाक से प्रतीक्षा ने हैंड लोअर कर दिया. एनीवन? No one, nobody wants to speak.
मतलब मुझे तो बहुत बड़ा अभी टास्क है कि कैसे स्टूडेंट्स को ऐसे बनाना है कि जैसे ही बोला कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वैसे ही ये जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है उतना आंसर बोलना चालू कर दे. नो वन इज रेडी टू गिव द आंसर. Will to learn, very good, Shraddha. Okay, you have given in the chat box. Eagerness will to teach. Okay, eagerness, will to teach. Ichha, okay, Mayur is saying ichha, willingness is ichha. Consistency means, Shraddha is saying consistency means continuously present and learn, will to learn and learn. Okay, good. Who else? Okay. So willingness is very important. Commitment means promise to yourself. Wow, what answer. To learn. Commitment means promise to yourself to learn. Very good, Mansi. Great answer. अजून कोणी? फाईन. सो विलिंगनेस म्हणजे तुमची स्वतःची इच्छा. आपली जर इच्छाच नसेल, आता तुम्ही एक सांगा की सपोज, ओके, वेलकम मानसी. सपोज विलिंगनेस म्हणजे आता तुम्ही तुमच्या फ्रेंडनी तुम्हाला म्हटलं की चल आज भेटायला जाऊ. तुमची इच्छा जर नसेल तर तुम्ही काय म्हणणार, नाही आज मला बरं नाही आहे, अगं मला दुसरीकडे जायचं आहे, लागेल तर तुम्ही घरी मस्त आराम करणार. पण तुमची इच्छा नसली तर तुम्ही नाही जाणार, नाही कारण देणार. बट वेन यू आर विलिंग, आप बोलोगे अरे सांग मला कधी यायचंय, कधी भेटायचंय, कुठे भेटायचंय, सांग ना किती दूर येऊ इथून. आता पुण्यासारख्या सिटीज किंवा वेर एव्हर यू माइट बी, तो यू माइट बी लिविंग इन योर सिटी, तो आप बोलोगे कितना भी दूर रहो, इच्छा है तो मी तर यायला रेडी आहे. श्रद्धा इस लाफिंग. तो जब विलिंगनेस है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. फिर वो बोलते हैं की अरे रात्री लेट होईल, अरे चालेल रात्री लेट झालं तरी चालेल, मी घरी सांगून देईल बरोबर. असं तसं आपण बरोबर करून, दॅट इज विलिंगनेस, कारण इच्छा आहे. तो फिर अभी सब लोग अभी 8:30 बजे ज्वाइन हुए हो, इट शोज दैट यू आर विलिंग टू लर्न अँड यू आर स्टिल इन द सेशन. दॅट मीन्स यू आर विलिंग टू, तुमची इच्छा आहे ऐकण्याची की नेमकं आम्हाला काय करायचं, नेमकं आम्हाला काय अभ्यास करावा लागेल, नेमकं काय कव्हर होणार. तो ये बिगेस्ट थिंग है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल द 19 स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर, बिकॉज यू आर स्टिल हियर इन द बैच एट नाइट एट 8:30 एट 9 PM ऑल्सो. तो ये इच्छा आपको चाहिए, बट ये कंटिन्यूअस चाहिए. आज इच्छा आहे, उद्या नाही करत, परवा नाही करत, आणि सगळ्यात जास्त काय होते की जाऊ दे ना, रेकॉर्डिंग आहे ना, संडेला पाहून घेऊ. आता मंडेची रेकॉर्डिंग पण जाऊ दे, संडेला पाहून घेऊ. ट्यूजडे पण ठीक आहे, रेकॉर्डिंग आहे, संडेला पाहून घेऊ. किंवा आपल्याकडे भरपूर दिवस आहेत, आपण एखाद्या सुट्टीत किंवा उद्याला मी 2-2 तास कव्हर करून पाहून घेईन. सो ये कंसिस्टन्सी नहीं है. Coming here for the session every day, participating here, actively participating in the session daily, that is consistency. आणि सॉफ्ट स्किल्स मध्ये जास्तीत जास्त प्रॅक्टिकल गोष्टी होणार. 70% प्रॅक्टिकल, 30% आर थेरिओटिकल. सॉफ्ट स्किल तुम्ही वर्षभर ऐकत चला. एनी सेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स यू लिसन फॉर 1 year, इफ यू विल नॉट इम्प्लिमेंट इट, यू विल नॉट इम्प्रूव्ह. तुम्ही कम्युनिकेशन स्किल्सच्या 100 बुक वाचा, बट त्याच्यातले टेक्निक्स जर तुम्ही वापरणार नाही, तुमची स्किल कधीच इम्प्रूव्ह होणार नाही. तो कंसिस्टेंसी इज कि जो भी आप पढ़े हो या वो रेगुलरली पढ़ना. कंसिस्टेंसी इज कमिंग हियर फॉर द बैच एवरी डे विदाउट गिविंग any excuse, and without giving any excuse then comes with that is the commitment. आजकालच्या दुनियेत कमिटेड राहणं तर खूप मुश्किल झालं, नाही का? येस और नो, रिलेटेड टू द गोल्स आई एम टॉकिंग. गोल्स आप लोग क्या सोच रहे हो? कसे थम्सअप आले पटापट, पहा कोणत्या गोष्टीवर थम्सअप आले. आय वॉज टॉकिंग कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल. Yeah, but nowadays it's very difficult to stay committed, whoever it is, whether it's a person, whether it's a goal or the career. So commitment is की जसं म्हटलं आता मानसीने की जे डिसाइड केलंय ते करूनच दाखवायचं, वो है कमिटमेंट. जो बोला है आज, जो आप मुझे बोल रहे हो की आय विल बी रेग्युलर, आय विल अटेंड रेग्युलरली, आय विल पार्टिसिपेट रेग्युलरली, तुमच्या शब्दावर ठाम राहणं म्हणजे कमिटमेंट. जे बोललो ते करून दाखवणं म्हणजे कमिटमेंट. अदरवाइज रीजन्स तो हम 100 दे सकते हैं, रीजन्स देने वाले तो बहुत मिलते हैं की नाही असं तसं हे ते. आता स्वतःलाच रिझन्स देतात की आज मला बरं नाही वाटत आहे थोडंसं, आणि मस्त झोपता आणि मग 1 तास ते काय मोबाईल वापरत बसता. सो इट्स नॉट कमिटमेंट. And then comes the practice thing. There are no other magic. ह्या दुनियेत असं कुठलंच मॅजिक नाही आहे की जे
प्रॅक्टिस नाही केल्याने पॉसिबल आहे. यू हॅव टू प्रॅक्टिस इट अगेन अँड अगेन अँड अगेन. विदाउट प्रॅक्टिस देर इज नथिंग. आणि जी गोष्ट आपण नेहमी नेहमी करत राहतो ना त्याच्यात आपण एक्सपर्ट बनतो. ये बहुत इम्पॉर्टंट चीज आहे. आता तुम्हीच मला सांगा की तुम्हाला सकाळी उठायचंय लवकर आणि एक्सरसाइजला जायचं. उद्याला जेव्हा तुम्ही उठायचं ट्राय करणार सकाळी, ऍट दॅट टाइम इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ही अलार्म बंद करणार, स्नूज बटन क्लिक करणार, मग कसं तरी डोळे उघडेल आणि तुम्ही रनिंगला जाणार आणि मग तिकडून आल्यावर तुमचा जो एनर्जी डाऊन होणार, युअर बॉडी विल पेन. देन नेक्स्ट डे ऑल्सो यू विल फील की अरे यार आज बॉडी पेन होते, आता उद्या नाही जात, परवा जाते, मग परवाचं त्याच्यानंतर, डे बिफोर नेक्स्ट डे, सॉरी डे आफ्टर नेक्स्ट डे. सो असं करत करत तुमचे ते दिवस जातात अँड कमिटमेंट गया, कन्सिस्टन्सी गया, विलिंगनेस गया. बट फर्स्ट डे यू वेंट फॉर एक्सरसाइज, बॉडी पेन हुआ, देन यू आर सेइंग कि नहीं पेन है तो नेक्स्ट डे जाना ही पड़ेगा. सेकेंड डे यू वेंट, थर्ड डे यू वेंट, फोर्थ डे यू वेंट फॉर रनिंग. ऐसे करते करते 1 महीना हो गया. अभी 1 महीने बाद में क्या होता है कि इवन इफ यू मिस 1 डे विदाउट रनिंग, विदाउट एक्सरसाइजिंग, यू विल फील लेजी फॉर द एंटायर डे बिकॉज यू आर यूज टू इट नाउ. ही हे फरक असते. सुरुवातीला खूप डिफिकल्ट राहते. सुरुवातीला एक्सरसाइज चालू केल्याने आपला दिवस खूप लेझी जातो बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट. बट वंस यू आर यूज टू इट, वंस यू टेक 1 month, सो उसके बाद में आपको रेस्टलेस होगा कि मैं एक दिवस पण एक्सरसाइज नहीं केली. Is it anyone who does exercise on daily basis? They might be knowing this. कोई जिम जाता होगा, कोई रनिंग को जाता होगा, कोई वॉक को जाता होगा, कोई योगा करता होगा, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन. एक दिन भी अगर ये नहीं किया ना तो पूरा दिन वेस्ट लगता है. How many of you really does this? Is there anyone? Shraddha is saying yes. असं असते. तर जेव्हा आपल्याला कुठल्या गोष्टीची सवय लागते ना, सो वो प्रैक्टिस से ही लगेगी. और एक बार एक दिन वो अगर आदत नहीं रहती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग. तो एक बार आपको ये चीज की आदत लग गई, डेली क्लास करना, डेली पढ़ाई करना, जो टाइम टेबल डिसाइड किया है वो करना, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू एवरीवन. सो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, मेरा स्पेशली फॉर सॉफ्ट स्किल सेशन, कि आप विलिंगनेस दिखाओ, बी अटेंटिव इन क्लास, डेली प्रेजेंट रहो, डेली होमवर्क जो दिया है वो कंप्लीट करो, दैट इज कंसिस्टेंसी. कमिटेड रहो. मैंने डिसाइड किया है गोल अचीव करना है, मैंने डिसाइड किया है कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, मैंने डिसाइड किया कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, एचआर राउंड इंप्रूव करना है, तो आई एम गोइंग टू बी कमिटेड टुवर्ड्स इट एंड आई डू वॉट एवर इट टेक्स. एंड देन अलॉन्ग विद दैट कम्स द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ऐसा कम्युनिकेशन में कभी कभी होगा की यू नीड टू टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर, यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश. आणि कोणाकोणाचे असे फ्रेंड्स आहे की तुम्ही जर इंग्लिशमध्ये बोलणं सुरू केलं तर तो तुम्हाला म्हणेल किंवा ती तुम्हाला म्हणेल काय लावलंय हे इंग्लिशमध्ये बोलणं, ही तर इंग्रजी मीडियम पासून आली आहे, खूपच भल्लीच इंग्लिश बोलून राहिली आहे, तर रोज प्रॅक्टिस करत आहे, असे आपले फ्रेंड्स म्हणतात आपल्याला. बस कर आता, किती दिवस बोलणार आहे इंग्लिशमध्ये. सो बोलने दो उनको, बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग कि जब तक दुनिया तुमको पागल नहीं बोलती ना तब तक तुम तुम्हारे गोल के लिए पागल नहीं हो. दिस इज अ रियालिटी. असं तुम्ही याच्यासारखं अभ्यास करायचं, असं तुम्ही मॅड सारखं टाइम डेडिकेटेड द्यायचा. अँड आय एम नॉट सेइंग की फ्रेंड्स को दूर रखो, लिमिटेड टाइम. अपन सगळ्यात जास्त 80% टाइम वी आर वेस्टिंग इट, 20% ही हम यूज कर रहे हैं अच्छे से, उसमें एक क्लास आ गया 1 घंटे का. तो ऐसा नहीं है. सो दुनिया कुछ भी बोले, यू डू what you want, because unless and until people will not say कि ही पागल झाली है, then you don't have the big goals. The goals are very small if people are not laughing at you. बोलने दो लोगों को की हो ही पागल झाली आहे, हो बोला हा मी पागल झाली आहे. नंतर जेव्हा रिझल्ट येते ना तेच लोक आपल्या जवळ येऊन म्हणतात की तू काय केलं होतं मला एकदा सांगते का. देन यू टेल देम की जेव्हा तू हसली होती ना तेच मी केलं होतं, तेच तुला आता करावं लागेल. तो बी मॅड फॉर योर गोल, बी मॅड टू इम्प्रूव. तो लोगों के पीछे मत पागल हो ना, बट अपने गोल्स के पीछे पागल रहो, वो गोल्स बराबर आपके हाथ में आ जाते हैं. दिस इज अ रियल एग्जांपल. बट यू हैव टू बी दैट मच विलिंग, दैट मच कंसिस्टेंट, दैट मच कमिटेड, and along with that practice, practice and practice will help you, nothing else. Okay. And yes, one more important thing which I would like to just a second. One more important thing, एक टॉपिक विच आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन, जो अभी सबसे ज्यादा कंपनीज में हो रहा है
विच राउंड अभी ज्यादा कंपनीज ले रही है? अभी कोविड भी खत्म हो गया है, तो एक राउंड है जो जिसमें बहुत सारे कंपनीज वो राउंड ले रही है. विच राउंड इज इट? यस एनीवन? बहुत सारे अगर लोग रहे तो वो राउंड लेना पड़ता है. तो व्हाट डू यू थिंक, विच राउंड? Exactly. Shraddha, Mansi, Neha, it's a group discussion. So group discussion भी we are going to cover up because now the COVID is over. COVID खत्म हो गया तो मतलब अभी online interviews भी खत्म. In person interview, in person group discussion, in person technical round, in person aptitude round. तो इसके लिए अगर रेडी होना है, इसके लिए अगर कॉन्फिडेंट रहना है, तो यू नीड टू अटेंड द सॉफ्ट स्किल सेशंस. और सारे सेशन वी आर गोइंग टू कवर. ओके, सो यू डोंट वरी अबाउट इट कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा. जस्ट लीव इट ऑन सॉफ्ट स्किल्स, पीपल स्किल्स. So how many of you are willing to learn soft skill? Raise your hand or just send me thumbs up. ये hand raise is very boring. Send me the emojis. Send me the emojis. Thumbs up. Celebration. Yes, we are willing. Okay, we'll do one thing. I'll ask you the question. How many of you are willing? Just unmute and say yes. I'll say, are you willing to learn? And you just together unmute and say yes. So are you all ready to learn the soft skill session? Yes. Yes, ma'am. Good. Only two students? Only three? Only three or two students, Mansi, Neha and Mayur. That's it. Yes, ma'am. Shraddha, Darshan, okay. Good. Fine. And yes, again, I'll repeat, soft skills are really a practical thing. Soft skill तभी सीख पाओगे जब आप practically apply करोगे. Technical the same thing, practically apply laptop पे करोगे. But soft skills you have to apply on people. And where are the peoples? ये people जो यहाँ पे join हुए हैं. इनके साथ we are going to practice. And there is going to be a boat. हम सब लोग एक ही बोट में हैं. Because हमारा target एक ही है, हमारा destiny एक है. Sorry, not destiny, but the destination. कि हमको place होना है. And we all are going to support each other because जो नहीं करते support, those are not with us. वो खुद भी आगे नहीं जाते और दूसरों को भी आगे नहीं जाते, तो हमको वो पर्सन नहीं बनना है. We have to support each other. किसी की कुछ गलतियां होती है, we have to support them. किसी को डर लगता है, we have to support them. और ये सॉफ्ट स्किल में तो बहुत फ्रेंडली वे से हो जाएगा. You'll talk with each other, you'll know each other, and at the end of the session, sometimes end of the session, students are willing to switch on the camera and speak. वही मेरा टारगेट है कि आप सबको कैमरा ऑन करके बात करनी पड़ेगी. बट डोंट वरी, नॉट ऑन द फर्स्ट डे, एंड आई गारंटी. और तुम्हारे पास में तो अभी एक ऑप्शन है ही. अगर मैंने बोला किसी का नाम लेके कि वैष्णवी स्विच ऑन द कैमरा, वैष्णवी क्या करेगी? वैष्णवी लेफ्ट द मीटिंग. ये सबसे अच्छा ऑप्शन सबके पास में, तो इट्स योर चॉइस. वैष्णवी जस्ट जोकिंग, आई जस्ट टुक योर नेम फॉर एन एग्जांपल. तो वैष्णवी बोलेंगी नो मैम, आई एम रेडी टू स्विच ऑन द कैमरा. तो हे ऑप्शन सगळ्यांकडे आहे. बट ये जो नहीं करेगा, जो फेस करेगा, वो आगे जाएगा. जो लेफ्ट कर देगा, जैसे मैं बोलती हूँ कि नाउ स्टूडेंट लेट्स प्रेजेंट अ टॉपिक, बस लेफ्ट द ग्रुप लेफ्ट द ग्रुप लेफ्ट द ग्रुप ऐसे दिख जाता है, गायब. और फिर बाद में 5 मिनट बाद में आके देखते हैं कि सेशन चालू हो गया क्या, प्रेजेंटेशन खत्म हो गया क्या. फिर पता चलता है कि अरे नहीं, मेरा नाम वापस लिया है, देन अगेन लेफ्ट द ग्रुप. ये नहीं करना है हमको. कमिटमेंट. ओके फाइन. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल एवरीवन. और जो टॉपिक्स आपको दिखाए हैं स्क्रीन पे, उसके अलावा वी आर गोइंग टू हैव नंबर ऑफ टॉपिक्स ऑन सॉफ्ट स्किल्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लीडरशिप है, टीम बिल्डिंग है, ये सारे टॉपिक्स भी हम कवर करने वाले हैं along with HR, resume, GD. So it's a package, a whole package of soft skill in First Bit Solution. So let's see how many are going to meet me in the soft skill session आने वाले सेशन में. तो जब भी स्केड्यूल होगा आपका सॉफ्ट स्किल, whenever you will take the admission, whenever you will be the student, अभी तो है ही, बट जैसे ही आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, जैसे सॉफ्ट स्किल स्टार्ट हो जाएगा, हम सारी चीजें स्टार्ट कर देंगे. Okay, fine then. Just last thing, send any reaction here, the last reaction before ending our session. Any reaction? I'll just send the heart wala emoji. This is for you all from my side. Other students, send your own reactions. Let me see how you all are feeling. Yes, Mansi. Ask the question. Till that time, other you can just send the emojis. So this is from my side.
ये आपको ग्रुप पे पता चलेगा. आई कैन जस्ट गिव यू आंसर ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स, आई मीन सॉफ्ट स्किल्स क्वेरी, बट scheduling, टाइम टेबल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप. ये सारी चीजें ना आप इंक्वायरी करोगे या फिर आप ग्रुप पे पूछोगे तो तब आपको आंसर मिलेंगे. बिकॉज योर आई कैन जस्ट टेल कि व्हाट्स द ग्रुप, आस्क क्वेरीज इन द ग्रुप. बिकॉज scheduling टीम इज डिफरेंट, ट्रेनिंग टीम इज डिफरेंट, और मॉड्यूल ट्रेनर्स आर डिफरेंट बिकॉज यू हैव नंबर ऑफ मॉड्यूल्स. अलग अलग मॉड्यूल के अलग अलग शेड्यूल रहेंगे विच scheduling टीम नोज. तो मैं यहाँ पे आपको गारंटी नहीं दे सकती कि हाँ ऐसा ही रहेगा वैसा ही रहेगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी, you ask on the free group. So every queries will be solved there. Okay? Or you can just message the admin. आपके ग्रुप में एडमिन करके एक नंबर होगा टेलीग्राम ग्रुप पे और वेरेवर व्हाट्सएप और टेलीग्राम. तो उस पे यू मैसेज टू द एडमिन, तो आपकी क्वेरी वहां सॉल्व होगी. ओके, फाइन देन. चलो, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, मिलेंगे आगे आने वाले सेशन में, सॉफ्ट स्किल का नया सेशन. टिल दैट टाइम हाउ यू नो मयूर? भाषेवरनं ना, मराठी भाषावरनं. येस, आय एम फ्रॉम विदर्भ. काय करून राहिला? तुम्ही काय करून राहिले? ओके, येस, आय एम फ्रॉम विदर्भ, आय एम फ्रॉम अमरावती.